I'm going to explain the NCERT questions of class 10 of the chapter acids and bases one by one. Now the question number 1 you can see on your in front of you. First question number 1 you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? Question number 1. That means we have 3 test tube. In first test tube we have distilled water. Clear? Pure water. In the second test tube we have acidic solution. Okay? And in the third test tube we have the basic solution. Now we have the red litmus paper. We have red litmus paper and we have to identify the contents of the test tubes. Now how will we write this answer? We take a small amount of each of the given liquids in 3 separate test tubes. We take all the 3 liquids which are given in 3 test tubes, small amount of all of them. Now we dip red litmus paper strip separately in all 3 test tubes. One by one we dip that red litmus paper in all of the test tubes. The liquid which turned red litmus blue, because we have given the red litmus paper, we have red litmus paper, and the liquid in which the red litmus paper turns blue, then it was a basic solution, because when red litmus paper turns blue, it was the basic solution. By removing this test tube number 1, we now remaining the 2. Then how will we find which one was that? Now add 1 drop from each solution one by one on this above blue litmus paper, because now that litmus paper becomes blue. Okay? Now when this blue litmus paper turns into red, it becomes the acid. Okay? Now add 1 drop from each solution one by one on this above blue litmus paper. Then the solution which turns that blue litmus paper red is acidic, and which do not able to change the color is the distilled water. Now I am going to explain this content in Hindi. Listen carefully. हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं. 3 में हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं. And we have to check which solution is acid, which solution is base, and which solution is the pure distilled water. That means it is neither acid nor it is base. So firstly, because we have the red litmus paper, हमारे पास तो रेड लिटमस पेपर है, तो हम पहले क्या करेंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में उसको रेड लिटमस पेपर को डालेंगे. तो जिस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, दैट वाज द एसिड, वो एसिड हो गया. ठीक है, उस सॉल्यूशन को अलग कर दिया. और अब हमारे पास 2 बचे. अब उसमें से हम कैसे पता चला करेंगे कि इसमें से कौन सा मेरा बेस है और कौन सा मेरा डिस्टिल वाटर है. तो जो हमारा लिटमस पेपर था वो तो रेड से ब्लू कलर में बदल गया ना, क्योंकि हमने उसे एसिड में डाला था. तो रेड कलर लिटमस पेपर किससे बदल गया? ब्लू में. तो अब दोनों सॉल्यूशन में एक एक करके डालेंगे. तो जिस सॉल्यूशन में वो ब्लू लिटमस पेपर अब रेड में बदल जाएगा, तो वो सॉल्यूशन बेसिक वो एसिड हो जाएगा. ठीक है, वो सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा? एसिड. और जो तीसरा वाला जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट वाज द डिस्टिल्ड वाटर. सो दिस इज ओवरऑल इन दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस डू नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? कर्ड मने होता है दही और सोर मने होता है खट्टा. दही या खट्टी चीजों को हमें ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? वेसल मने होता है बर्तन. कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड which react with copper and brass to form certain salts that are poisonous in nature. कॉपर में और ब्रास के साथ दही जो होता है वो रिएक्शन कर जाता है, कर्ड रिएक्ट करता है, और कर्ड के अंदर एसिड होता है. तो इसकी वजह से कुछ पॉइजनस सॉल्ट बनते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. दैट कॉजेज अस फूड पॉइजनिंग एंड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. Hence sour substances like curd, pickles, that means achar, should not be kept in the brass and copper vessel. We should not keep them in the brass and copper vessels. Now next question of the NCERT, that means question number 5 we have. Why do HCl, HNO3, etc. shows acidic characters in aqueous solutions, while the solution of the compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? So that means when these compounds, HCl means hydrochloric acid, HNO3 means nitric acid. When we dissolve them in aqueous solution, they show the acidic character. But when we dissolve alcohol and glucose, it doesn't show acidic character. Why this had happened? The question is that.
Now what's the answer? The acidic character of a compound is due to the presence of H plus ions. I have explained you earlier that whenever there's an acid, when we dissolve in water, it gives what? H plus ion. That means proton ions. Clear? Which are released in the aqueous solution, and they are responsible for acidic properties. That means any compound which release H plus ion, any compound which release H plus ion is only responsible for acidic properties. Okay? If any compound doesn't release the H plus ion, then it is not responsible for acidic properties. As HCl and HNO3, they have replaceable H plus ions. That means when we dissolve them in water, if we dissolve HCl in water, it gives H plus and Cl minus. If we dissolve HNO3 in water, it gives H plus and NO3 minus. That means they both give H plus ions. So they show the acidic properties. While glucose and alcohol, when they dissolve in water, they doesn't give the H plus ion. So they do not show the acidic properties. Okay. Now the next question. Question number 6. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? That means if we form any aqueous solution of acid, what is aqueous solution of acid? When we mix acid in water, then it becomes aqueous solution. Okay. So why aqueous solution of acid conduct the electricity? An acid molecule dissociate in aqueous solution. Dissociate means टूट जाता है. Acid molecule dissociate in aqueous solution to produce H ions and one more thing, H3O ions. That means protium ions. Both are same. And corresponding anions A minus. That means whenever any acid dissolve in aqueous and dissolve in water, it gives H plus and negative ion A minus. These free ions carry the electrical charge from one place to another. Hence they conduct electricity. So ions only are responsible for taking electrons from one side to another. Okay, so when acids are dissolved in water, we get free ions. So free ions are responsible for conducting electricity. So that's why when we dissolve any acid in the water, it conducts electricity. Now next question. Why does HCl, dry HCl gas, not change the color of dry litmus paper? Generally HCl is the acid. When we put litmus paper in HCl, it becomes to red color because it is acid. But it is given that dry HCl does not change its color. Why? Dry HCl does not contain H ion. That means dry HCl does not release H plus ion. So as it does not release H plus ion, so it is not show the acidic property. So dry litmus paper, so it does not change the color of dry litmus paper. देखो अगर कोई एसिड है, अगर वो एक्वस में डाल दिया, पानी में डाल दिया या लिक्विड फॉर्म में है, तो वो H प्लस आयंस रिलीज करेगा. जब वो H प्लस आयंस रिलीज करेगा तभी वो एसिड होगा. तो ड्राई HCl है, दैट मीन्स उसमें से H प्लस आयंस रिलीज नहीं करेंगे. तो जब H प्लस आयंस रिलीज नहीं करेंगे तो वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट रिलीज द H प्लस आयन. नाउ some more questions I will tell you. Now next question which we have to learn, while diluting an acid, is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, यानी उसको पतला करना है ना, उसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट करना है, why is it recommended, ऐसा क्यों कहा जाता है that the acid should be added to water? एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, नॉट वाटर टू एसिड, और पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए. एसिड को पानी में डालना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए. जस्ट सी ऑन द लाइन्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. डाइल्यूशन ऑफ concentrated acid is highly exothermic reaction. Whenever we dilute any concentrated acid, this reaction is highly exothermic and a lot of heat is generated. मतलब जब भी किसी एसिड को उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है
तो बहुत हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर। सो जब भी कोई कंसनट्रेटेड एसिड में अगर हमें पानी मिलाना है ना, तो हमें बहुत ध्यान से मिलाना पड़ता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड को पानी में डालो और वो भी बहुत धीरे धीरे, विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, हिलाते हुए डालना है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर एसिड पहले से रखा है और उसमें आपने पानी डाल दिया, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि अगर एसिड पहले से आपने किसी, मान लीजिए वेसल में रखा है, टेस्ट ट्यूब में रखा है, आपने ऊपर से पानी डाला तो ब्लास्ट हो जाता है और आप जल भी सकते हो, क्योंकि एसिड से हमारी स्किन जल जाती है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। कभी कभी जिस टेस्ट ट्यूब में हम मिलाते हैं वो टेस्ट ट्यूब भी टूट जाती है, मतलब वो एक तरीके से एक्सप्लोजिव होता है। तो बहुत ध्यान रखना है, हमेशा आपको पानी में एसिड डालना है, वो भी हिलाते हुए और बहुत धीरे धीरे, लेकिन एसिड में पानी नहीं डालना। Now next question, how is the concentration of hydronium ion? देखो ये जो H3O+ है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और इसी को भी अगर H+ लिखा रहता है तो उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन लिखा हो और चाहे प्रोटॉन लिखा हो, ये दोनों ही एसिड रिलीज करता है, दोनों ही सेम होते हैं। तो हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? अगर किसी एसिड को हम डाइल्यूट करें, मतलब उसमें पानी मिलाएं, ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है? एन एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड एनायंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो जब भी किसी एसिड को हम पानी में डालते हैं तो वो H3O+ और एनायन में टूटता है। एनायन मतलब नेगेटिव वाले में टूटता है। जैसे मान लो आपने HCl को डिसॉल्व किया तो H+ टूटेगा और Cl- टूटेगा। तो इट डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोनियम आयन एंड एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव वाला। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब किसी सॉल्यूशन को पतला किया जाता है ना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि हमने पानी जो डाला है, बट द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन्स द सेम, लेकिन जो आपके आयन्स है H+ वो तो सेम ही है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। यानी जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, लेकिन साथ में क्या लिखा है, पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिक्रीज, घट जाता है। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि अगर हमारे पास बेस है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होगा? तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? नाउ हियर द बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, not in water. In the acid we dissolve that acid in water, so hydronium ions get decreases per unit volume. Now when sodium hydroxide is dissolved in excess of sodium hydroxide, not in water, when sodium hydroxide we know it is a strong base है ये sodium hydroxide NaOH, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH. When excess base is dissolved in solution of NaOH, the concentration of hydroxide ions per unit volume increases. क्योंकि आपने हाइड्रोक्सिल आयन को एक NaOH में ही डिसॉल्व किया तो हाइड्रोक्सिल आयंस के कंसंट्रेशन आपका बढ़ गया ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaOH एज वेल एज द अदर बेस इन द एक्वस सोल्यूशन. मान लो NaOH को आपने जब डिसॉल्व किया तो Na+OH में ये डिसोसिएट हुआ, टूटा. इसी तरीके से आपने दूसरा बेस ले लिया, दूसरा बेस कोई, तो मान लीजिए उसका फॉर्मूला M है लेकिन उसमें तो हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, तो हाइड्रोक्सिल आयंस देखो टोटल ज़्यादा हो गए कि नहीं, तो हाइड्रोक्सिल आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन pH वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 11,
You have two solutions A and B. We have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 7. Oh, sorry, 8. Which solution has more H plus ion concentration? Which solution is acidic and which is basic? Listen one thing. यहाँ पर आपने जैसे पढ़ा है कि pH वैल्यू 1 से लेकर 14 के बीच में होती है. जो pH वैल्यू 7 होती है वो वाटर की होती है और वाटर मेरा न्यूट्रल होता है. अगर 7 से pH वैल्यू कम है तो वो एसिड है और 7 से pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो बेस है. फिर से सुन लो, 7 से pH वैल्यू कम है तो वो एसिड है, 7 से pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो बेस है. तो यहाँ पर B की pH वैल्यू क्या है? 8 है और A की pH वैल्यू क्या है? 6. तो pH वैल्यू B की अगर 8 है तो B वाला क्या हो गया? बेसिक, क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है. और A वाला क्या हो गया? एसिडिक, क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से कम है. अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोक्सिल आयंस. ये आपको है ना, मोर H प्लस आयन, हाइड्रोक्सिल कह रही हूँ, प्रोटॉन आयन. तो प्रोटॉन आयन यानी कौन देता है? एसिड देता है. तो किसके पास एसिड ज़्यादा है? ए वाले में, जिसका pH 6 है. अगर यहाँ पर H प्लस की जगह OH माइनस होता तो आप क्या आंसर लिख देते? B. तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है. यू कैन डू दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what effect does the concentration of H plus ions on the nature of the solution? अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने H प्लस आयन मैंने और मिला दिया, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? तो H प्लस आयन किसको बताता है कि वो एसिड है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा. हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन. अगला क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस? क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयंस होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? Yes, basic solution also contain H plus ions, but they are basic because in these solutions concentration of OH minus is much higher than that of H plus ion. ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? वाटर. वाटर को आप मतलब वाटर नहीं ले सकते, वाटर तो न्यूट्रल हो जाएगा. तो मतलब कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, लेकिन उन्हें बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिसमें H भी हो और OH माइनस भी हो, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर H की ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अगर OH की ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slaked lime? From this question you can learn the formula. Quicklime का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का O. स्लेक्ड लाइम का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH ब्रैकेट में 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है. और चौक का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. देखो तीनों फॉर्मूले लिखे हैं आंसर में, ठीक है? ये तीनों आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपकी क्लास में, आपके कोर्स में है. द फर्टिलाइजर्स CaO, CaOH2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों फॉर्मूले लिखे हैं. आर ऑफ बेसिक नेचर, इनका नेचर बेसिक है. देयरफॉर देयर यूज विल बी बेनिफिशियल. If the soil is acidic, the purpose is to neutralize or decrease the acidity of the soil. देखो इसमें जो जवाब लिखा था, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि अगर कोई किसान अपने खेतों में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट डालता है तो वो क्यों डालता है? क्योंकि ये तीनों की तीनों बेस हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप अंदाज़ा लगा लो कि वो बेस है. ये तीनों की तीनों बेस हैं, तो यानी उसकी मिट्टी एसिडिक है, तो एसिडिक मिट्टी यानी बंजर मिट्टी हो गई, ठीक है? तो वो खेती करने में उसको दिक्कत होगी, उसकी फसल पैदा नहीं होगी. तो इस तरह के वो फर्टिलाइज़र डालता है कि उसकी मिट्टी सही हो जाए और फिर वो खेती कर सके. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया?
The purpose is to neutralize यानी decrease the acidity of soil. That is main answer क्या है? Farmer treat the soil with these because he wants to neutralize the acidity of the soil. He wants to decrease the acidity of soil. अगर कोई किसान इन चीज़ों को डाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें बेसिक हैं, यानी किसान की मिट्टी एसिडिक है, तो फॉर द कल्टीवेशन ही मिक्स दीज फर्टिलाइजर्स टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the common name of the compound CaOCl2? This is again the formula you have to learn, और इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. किस में अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन अगर हम करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. तो इसका रिएक्शन भी है, अभी यहाँ पर नहीं है, तो रिएक्शन भी लर्न करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. हमने एक बार और बताया था, हमारे यहाँ ज़्यादातर समुद्र में खारा पानी मिलता है, तो पीने योग्य पानी नहीं होता है. द वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, सो वी ऐड सोडियम कार्बोनेट. लर्न दिस थिंग. सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू soften the hard water, then this water is useful for us for different things. Next question, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? Now here the base is dissolved in sodium hydroxide, not in water. In the acid we dissolve that acid in water, so hydronium ions get decreases per unit volume. Now when sodium hydroxide is dissolved in excess of sodium hydroxide, not in water. When sodium hydroxide, we know it is a strong base है ये sodium hydroxide NaOH. इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH. When excess base is dissolved in solution of NaOH, the concentration of hydroxide ions per unit volume increases. क्योंकि आपने हाइड्रोक्सिल आयन को एक NaOH में ही डिसॉल्व किया, तो हाइड्रोक्सिल आयंस के कंसंट्रेशन आपका बढ़ गया ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaOH एज वेल एज द अदर बेस इन द एक्वस सोल्यूशन. मान लो NaOH को आपने जब डिसॉल्व किया तो Na प्लस OH में ये डिसोसिएट हुआ, टूटा. इसी तरीके से आपने दूसरा बेस ले लिया, दूसरा बेस कोई, तो मान लीजिए उसका फॉर्मूला M है, लेकिन उसमें तो हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, तो हाइड्रोक्सिल आयंस देखो टोटल ज़्यादा हो गए कि नहीं, तो hydroxyl ion per unit volume increases. Now next question we have, this question is based on pH value. Question number 11. You have two solutions A and B. We have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 7. Oh sorry, 8. Which solution has more H plus ion concentration? Which solution is acidic and which is basic? Listen one thing. यहाँ पर आपने जैसे पढ़ा है कि pH वैल्यू 1 से लेकर 14 के बीच में होती है. जो pH वैल्यू 7 होती है वो वाटर की होती है और वाटर मेरा न्यूट्रल होता है. अगर 7 से pH वैल्यू कम है तो वो एसिड है, और 7 से pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो बेस है. फिर से सुन लो, 7 से pH वैल्यू कम है तो वो एसिड है, 7 से pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो बेस है. तो यहाँ पर B की pH वैल्यू क्या है? 8 है, और A की pH वैल्यू क्या है? 6. तो pH वैल्यू B की अगर 8 है तो B वाला क्या हो गया? बेसिक, क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है. और A वाला क्या हो गया? एसिडिक, क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से कम है. अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोक्सिल आयंस. ये आपको है ना, मोर H प्लस आयन, हाइड्रोक्सिल कह रही हूँ, प्रोटॉन आयन. तो प्रोटॉन आयन यानी कौन देता है? एसिड देता है. तो किसके पास एसिड ज़्यादा है? ए वाले में, जिसका pH 6 है. अगर यहाँ पर H प्लस की जगह OH माइनस होता तो आप क्या आंसर लिख देते? B. तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है. यू कैन डू दैट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what effect does the concentration of H plus ions on the nature of the solution?
अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने H+ आयन मैंने और मिला दिया, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? तो H+ आयन किसको बताता है कि वो एसिड है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस? क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयंस होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? Yes, basic solution also contain H+ ions, but they are basic because in these solutions concentration of OH- is much higher than that of H+ ion. ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? वाटर। वाटर को आप मतलब वाटर नहीं ले सकते, वाटर तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें H+ भी होता है और OH- भी होता है, लेकिन उन्हें बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिसमें H भी हो और OH- भी हो, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर H की ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अगर OH की ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slaked lime? From this question you can learn the formula. Quicklime का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का O। स्लेक्ड लाइम का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH ब्रैकेट में 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। और चौक का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। देखो तीनों फॉर्मूले लिखे हैं आंसर में, ठीक है? ये तीनों आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपकी क्लास में, आपके कोर्स में है। द फर्टिलाइजर्स CaO, CaOH2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों फॉर्मूले लिखे हैं। आर ऑफ बेसिक नेचर, इनका नेचर बेसिक है, देयरफॉर देयर यूज विल बी बेनिफिशियल if the soil is acidic. The purpose is to neutralize or decrease the acidity of the soil. देखो इसमें जो जवाब लिखा था, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई किसान अपने खेतों में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट डालता है, तो वो क्यों डालता है? क्योंकि ये तीनों की तीनों बेस हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप अंदाज़ा लगा लो कि वो बेस है, ये तीनों की तीनों बेस है, तो यानी उसकी मिट्टी एसिडिक है, तो एसिडिक मिट्टी यानी बंजर मिट्टी हो गई, ठीक है? तो वो खेती करने में उसको दिक्कत होगी, उसकी फसल पैदा नहीं होगी। तो इस तरह के वो फर्टिलाइज़र डालता है कि उसकी मिट्टी सही हो जाए और फिर वो खेती कर सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? द पर्पस इज टू न्यूट्रलाइज यानी डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। दैट इज मेन आंसर क्या है? फार्मर ट्रीट द सॉइल विद दीज because he wants to neutralize the acidity of the soil. He wants to decrease the acidity of soil. अगर कोई किसान इन चीज़ों को डाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें बेसिक हैं, यानी किसान की मिट्टी एसिडिक है, तो फॉर द कल्टीवेशन ही मिक्स दीज फर्टिलाइजर्स टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the common name of the compound CaOCl2? This is again the formula you have to learn, और इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। किस में अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन अगर हम करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो इसका रिएक्शन भी है, अभी यहाँ पर नहीं है, तो रिएक्शन भी लर्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हमने एक बार और बताया था, हमारे यहाँ ज़्यादातर समुद्र में खारा पानी मिलता है, तो पीने योग्य पानी नहीं होता है, द वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, सो वी ऐड सोडियम कार्बोनेट। लर्न दिस थिंग, सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू soften the hard water, then this water is useful for us for different things. Now next question we have, fresh milk has pH of 6. We have seen the milk in our home and pH of milk is 6. Just learn it. How do you think the pH will changes as it turns into curd? अब जो दूध है वो दही में चेंज हो गया, तो क्या उसकी pH बदलेगी या pH उसकी बदलेगी? नहीं। चलिए अब देखते हैं। This question is asked many times. pH will decrease from 6.
अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला ना कर्ड को हम बर्तन में नहीं रखते ब्रास वाले में, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है ना। तो जो एसिड होगा तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी कि नहीं। तो मिल्क आपका उतना एसिड नहीं है, लेकिन कर्ड आपका एसिड हो गया, खट्टा हो गया, तो 6 से उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं। आप अपना ब्रेन लगा के सोचो, है ना। तो वही तो आंसर है, पीएच विल डिक्रीज फ्रॉम 6 during curd formation and lactic acid is produced. In the curd, the acid which is present in the curd, that is lactic acid. When milk changes into curd, its pH changes and become less than 6. Clear? No problem? Now next question. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. एक दूध बेचने वाला है, उसने अपने दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to alkaline? बेकिंग सोडा जो है वो जो होता है वो एक बेस है, ठीक है। तो pH वैल्यू 6 थी मिल्क की, तो उसकी pH वैल्यू बढ़ गई ना बेस डालने से, है ना। तो उस why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? अल्कलाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न सोर इजली, क्योंकि फिर दूध उसका खट्टा नहीं होगा, वो दिन भर में आराम से बेच लेगा, दोपहर तक शाम तक भी दूध वो फटेगा नहीं। इसलिए जो मिल्क मैन होते हैं वो जनरली बेकिंग सोडा दूध में मिला देते हैं कि चाहे तुम 2 घंटे बाद भी उबालो तो दूध उसका फटेगा नहीं, वो आराम से बेच लेगा। वॉट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन मिल्क कम्स टू बॉयल? लेकिन ऐसा बेकिंग सोडा मिला हुआ जो आपका दूध है, जब आप उसको उबालते हो तो आप उसमें क्या महसूस करते हो? When milk is about to boil, there must be more effervescence due to the presence of baking soda. उसमें बुलबुले निकलेंगे, बहुत ज़्यादा बुलबुले निकलते हैं अगर दूध में बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, है ना। सो व्हेन वी बॉयल द मिल्क इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ एफरवेंसेस, एफरवेंसेस मतलब बुलबुले निकलना, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड? लेकिन अगर इसी दूध का हम दही जमाते हैं तो जल्दी दही नहीं जमता, क्योंकि बेकिंग सोडा उसे प्रिवेंट करता है एसिड में बदलने को। व्हेन मिल्क इज सेट टू कर्ड, द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली मीन्स बेस, बेकिंग सोडा, does not allow it to become acidic easily, hence this will take a longer time to set as a curd. Okay? Video 1 नहीं गए। Now next question. Plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Explain why. Plaster of Paris होता क्या है? मूर्तियाँ देखते हो मार्केट में, भगवान जी वाली, that was plaster of Paris की बनी होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। आजकल तो घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस छत पे लगा होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। अगर ऐसे डिब्बे में रख दिए जिसका ढक्कन ढीला है तो वो मेरा ख़राब हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि उसको मॉइस्चर प्रूफ डिब्बे में क्यों रखते हैं, एयर टाइट डिब्बे में क्यों रखते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, यानी केमिकल नेम उसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। देखो कैसे हो गया, कैल्शियम का Ca हो गया, ठीक है बेटा, सल्फेट का आपका क्या हो गया, SO4 हो गया, ठीक है, और वाटर का हेमी हाइड्रेट लिखा है ना, हाइड्रेट मतलब वाटर, और हेमी माने आधा। अब तो फॉर्मूला समझ में आ गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पानी की टच में आ जाता है, इट सेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम। उससे जिप्सम में वो बदल जाता है, एक हार्ड मास कलेक्ट हो जाता है जिसको फिर बेकार हो जाता है, वो तोड़ना ही पड़ता है। दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो देखो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया फॉर्मूले में, ये वाटर कलेक्ट हुआ, तो हाफ हाफ आपको ख़त्म करना है ना फॉर्मूले से, तो आप यहाँ पे 1.5 लिखोगे वाटर, ठीक है। और अब आप यहाँ देखिए वही फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में हाफ ये 1.5 ये हाफ ये, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Okay? That means plaster of Paris is converted into gypsum when we add water. कभी भी देखो मूर्ति बनाना होता है तो पाउडर होता है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें पानी डाल देते हैं, उसको सांचे में रख देते हैं तो वो मूर्ति बन जाती है। तो वो जो मूर्ति कन्वर्ट होती है तो वो किस में हो जाती है, जिप्सम में। तो गणेश जी की मूर्ति मिलती है मार्केट में, दैट वाज जनरली मेड अप ऑफ
जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। टू प्रिवेंट दिस, इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि बिना शेप के अगर डिब्बा रखा ही रखा जम गया तो बेकार हो जाएगा, POP must be stored in moisture proof container. So we must store that plaster of Paris in those containers which are airtight. Now next question, what is neutralization reaction? This question is very important. Please learn this question. Okay, what is neutralization reaction? Listen, when acid and base, just concentrate over here, acid and base, they react with each other. Just see the equation. Acid and base react with each other, they form salt and water, and this is known as neutralization reaction. Now these are the two examples. For example, HCl, this is acid, and the compound having OH, that is base. Here it forms water and NaCl. Now these are the two examples I think you may learn. Now next question we have, what is the most important uses of washing soda and baking soda? अभी हमने पढ़ा था ना, बेकिंग सोडा दूध वाले मिलाते हैं तो उसका क्या यूज़ है और वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कपड़े धोते हैं उसमें जो दाग वाग होते हैं उसको वो रिमूव कर देता है। तो वॉशिंग सोडा इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीजिंग एजेंट। क्लियर? इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी को भी सॉफ्ट करने में काम आता है। तो दोनों ही बहुत अच्छे यूज़ हैं वॉशिंग सोडा के, कपड़े की सफाई करने के काम आता है और पानी को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड इन बेकरी। खाने पीने की चीज़ों में बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो फूल जाती है ना, जैसे आपका कुछ भी बनता है, आप जैसे कहते हैं पाव रोटी आती है या कुछ भी आता है मार्केट में, तो उसमें वी ऐड बेकिंग सोडा। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। जो आग बुझाने वाला होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर इसको डाला जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसको ऐड किया जाता है, जो कि आग बुझाने के काम आता है। सो दिस इज ओवरऑल फ्रॉम द NCERT विच आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर।